Good morning, children. Today we are going to discuss our next topic, stoichiometry or stoichiometric calculation in balanced chemical equation. अभी तक हमने जो डिस्कस किया, we have discussed about atomic mass, molecular mass, formula mass. After that, molar mass. Molar mass is gram atomic, gram molecular, and gram formula mass. Okay. Later on, we have discussed about mole concept, number of moles, how to find number of moles, after that mass percentage, and yesterday's class we have discussed about chemical formulae, empirical formula and molecular formula. Hope you understand all these topics. Even then, if any doubt is there, you can ask through WhatsApp group, no issue. Okay, so our next topic is stoichiometric calculation. First of all, we are supposed to know what is stoichiometry. You can note it down. Stoichiometry is a quantitative relationship between a reactant and product. A quantitative relationship between the reactant and the product. Okay. किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी के बेस पर रिलेशनशिप होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोकियोमेट्री. ओके, आई विल टेक अ सिंपल एग्जांपल जो आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था. कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज इन गैसेस स्टेट. Oxygen is also in gaseous state while carbon is in solid state. ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. How many moles of carbon are there? That is 1 mole. And 1 mole of oxygen and same 1 mole of carbon dioxide. Means when 1 mole of carbon react with 1 mole of oxygen gas, it produce 1 mole of carbon dioxide. तो ये जो रिलेशनशिप है, that only we called stoichiometry. अब in term of mass लेते हैं. 1 mole of carbon means that is 12 gram carbon, oxygen 32 gram oxygen, and carbon dioxide is 44 gram carbon dioxide. Means if 12 gram carbon react with 32 gram of oxygen, we are getting 44 gram of carbon dioxide. अब इसमें हम थोड़ा चेंज करते हैं कि सपोज करो we have 12 gram carbon and we have 16 gram of oxygen. How much carbon dioxide will produce? We need to check this. Many of you will give answer 12 plus 16, just like 12 plus 32 is 44. So 12 plus 16 answer will come 28 gram. But 28 gram is wrong answer. क्यों wrong है? अब देखो, हमारे पास 12 ग्राम कार्बन था. 12 ग्राम कार्बन react with 32 gram of oxygen. Now we have 12 gram carbon but oxygen only 16 gram. Okay, means 32 gram oxygen react with 12 gram carbon, so 16 gram oxygen will react only with 6 gram carbon, and 12 plus 16 answer will be 22 gram. Okay, तो इससे हमें पता चलता है कि यही हमारी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है कि क्वांटिटी के बेस पर ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट हमने जितना लिया वो टोटल उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा. ओके, जस्ट लाइक वी आर डिस्कस इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 9. बट उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए. आफ्टर देन आपको चेक करना है कि हाउ मच रिएक्टेंट इज देयर and how much product is formed. Daily life example लेते हैं. Suppose there are 12 students. Okay, each student having 12 students having 32 chocolates. Okay,
12 बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट हैं, उनमें 32 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की। अब हमारे पास जो है और सबको इक्वल अमाउंट मिला। ओके, मे बी आंसर विल बी इन फ्रैक्शन, डजंट मैटर। अब हमारे पास जो है 16 चॉकलेट है और स्टूडेंट को चॉकलेट उतनी ही मिलनी है, तो हमें नहीं पता कितनी है, तो हम इसे x एज्यूम कर लेते हैं। तो जब हमने x एज्यूम किया, नाउ विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 32x इज इक्वल टू 12 इंटू 16 और x इज इक्वल टू 12 इंटू 16 डिवाइड बाई 32, कैंसिल हुआ 2 और ये कैंसिल हुआ, आंसर इज 6। इट मीन्स 16 chocolates can be distributed only into 6 student। ओके, सो सेम वे कि जैसे हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन ने 12 ग्राम कार्बन से रिएक्ट किया, इफ वी हैव ओनली 16 ग्राम ऑक्सीजन इट विल रिएक्ट ओनली विद 6 ग्राम। नाउ 6 ग्राम is utilized to convert into carbon dioxide and 6 ग्राम कार्बन remain unreacted। ओके, 6 ग्राम कार्बन रिमेन अनरिएक्टेड। जैसे 12 स्टूडेंट थे, we had 16 chocolate have been distributed into 6 student and 6 student remain without chocolate। Hope you understand what is stoichiometry। यानी कि जितना हमारा रिएक्टेंट है, अब ये 6 plus 16 is equal to 22। now it follows law of conservation of mass। understand? I will take another example। we'll take, we have carbon oxygen लेते हैं। we have oxygen, it react with hydrogen to form water molecule। so first of all we'll balance the equation। 2 oxygen, so we'll multiply here by 2, water is in liquid state, hydrogen in gas, even oxygen is also in gas। so now hydrogen become 4, so we'll mark here 2। so we'll see 1 mole of oxygen, 2 mole of hydrogen will produce 2 mole of water। in term of mass, 32 gram oxygen, 4 gram hydrogen and total mass is 36 gram। okay, now suppose we have 32 gram oxygen and hydrogen instead of 4 we have 8 gram। so how much water will form? we need to check this। okay, तो कैसे चेक करेंगे? अगेन सेम थिंग, 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 4 ग्राम ओनली। ओके, इट मीन्स वही सेम चीज कि 4 स्टूडेंट हैविंग 32 चॉकलेट्स। अब चॉकलेट तो 32 ही है हमारे पास, स्टूडेंट हो गए 8 और ये भी कंडीशन है कि हर स्टूडेंट को सेम अमाउंट ही मिलेगी। ओके, तो स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गए, नहीं मिलेगी उन्हें, 4 स्टूडेंट विल रिमेन विदाउट चॉकलेट। सो सेम हियर 32 ग्राम ऑक्सीजन ऑलवेज रिएक्ट विद ओनली 4 ग्राम ऑफ hydrogen and water will remain 36 gram only। understand? so हमें सबसे पहले चेक करना है कि बैलेंस इक्वेशन, we need to write balanced equation, later on we will write this thing। okay, first मोलर के फॉर्म में you can write mole relationship and mass to mass relationship। ये लिखने के बाद आप चेक करेंगे कि आपके पास जो 32 ग्राम फर्स्ट रिएक्टेंट है और सेकेंड रिएक्टेंट, इनिशियली व्हाट इज देयर रेशियो इन टर्म ऑफ मास। आफ्टर देन आप चेक करेंगे। अब सपोज करो आपको नहीं पता कैसे करना है, तो सिंपल वे है, 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद 4 ग्राम, स्टिल वी हैव 32 एंड हियर 8 ग्राम है, तो
तो हम क्या करेंगे, यहां से x एज्यूम कर लेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसे 8 को चेंज करके हम 18 कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर आया 4 ओनली, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x 4x की वैल्यू, तो वी है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में से 4 ग्राम यूटिलाइज हो गया, हाउ मच रिमेन, 14 ग्राम हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड, रिमेन अनरिएक्टेड। अंडरस्टूड। अब थोड़ा सा नोट्स में देखते हैं, ये सब तो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड। अब हमारे पास एक टर्म आती है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये क्या होता है बेटा, अ रिएक्टेंट विच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड व्हेन अ रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, सो कॉल्ड बिकॉज इट्स कॉन्सेंट्रेशन लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे वे में समझाता हूं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा था, ओके, हमने लिया था हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन react with 1 mole of oxygen and it gives 2 mole of water, okay। और बैलेंस इक्वेशन के बेस पर मींस 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन एंड वी आर गेटिंग 36 ग्राम वाटर। अब सपोज करो आपके पास ये 8 ग्राम है, ठीक है, एंड दिस वन इज 40 ग्राम। हाउ मच वाटर विल प्रोड्यूस, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। अब क्योंकि ये तो इजी है, 4 + 32, अब 8 40 ग्राम कैसे हमें नहीं पता, क्योंकि दोनों वैल्यू चेंज हो गई। अब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें क्या था, एक रिएक्टेंट की वैल्यू हमने सेम ली थी, here both the values are changed। तो हम क्या करेंगे, we will assume anyone as x, ठीक है। सपोज करो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं कि जो 40 ग्राम है, ठीक है, 40 ग्राम रिएक्ट विद x ग्राम ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो फर्स्ट वाला हमारा था, अब हम इस 8 को निग्लेक्ट करके चलेंगे। अभी instead of 8 we will take x, so we'll do cross multiply, 4 gram react with 44 and this, so x into 32 is equal to 4 into 40, so x is equal to 4 multiplied by 40 divided by 32, so 4 8, ये कैंसिल हुआ, आंसर आया 5 ग्राम। It means 5 gram hydrogen react with 40 gram oxygen। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 8 ग्राम, ओके। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 ग्राम अवेलेबल कितना है, 8 ग्राम, इट मींस दिस 8 ग्राम इज एक्सेस है ना, 8 में से सिर्फ 5 ग्राम ही यूटिलाइज हो रहा है, और जो ये 40 ग्राम ऑक्सीजन है ये फुल्ली कंज्यूम्ड हो गया, अंडरस्टैंड। अब आप यहां क्या लिखेंगे, इसके बाद आप मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करना है, अब देखो जो हमने एज्यूम की वैल्यू x, अगर मान लीजिए x की वैल्यू जो गिवन वैल्यू है उससे स्मॉल आती है, इट मींस दिस रिएक्टेंट it means hydrogen is excessive reagent,
एक्सिस में है ना, एक्सेसिव रिएजेंट। जब हाइड्रोजन एक्सेसिव हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीजन। हेंस ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें तो क्या निकालना था, वी नीड टू फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट वाटर का प्रोड्यूस हुआ। तो अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए नाउ वी विल यूज लिमिटिंग रिएजेंट ओनली। कैसे, अब देखो H2 2H2 प्लस O2 से हमें मिलता है वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन 32 ग्राम, वाटर 36 ग्राम। नाउ लिमिटिंग रिएजेंट इज 40 and this is Y. Again do cross multiplication. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमें मिलेगा क्या बेटा, 32y इज इक्वल टू 40 इंटू 36। तो y इज इक्वल टू 40 इंटू 36 डिवाइड बाय 32। सो 5 जा 4 जा 9, so 9 5 जा 45 gram of water. Means how much water is produced? 45 gram. Understand? कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ बेटा, 45 ग्राम। दिस इज 45 ग्राम। ओके, अब हमने हाइड्रोजन कितना था, 8 ग्राम, यूज कितना हुआ, 5 ग्राम। तो हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड, जो एक्सेसिव रिएजेंट होगा वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3 ग्राम। अंडरस्टूड। अब यही प्रॉब्लम मैं आपको दूसरे वे में और करता हूं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने एक्स हाइड्रोजन को ही क्यों लिया है। अब देखो अगेन आई विल राइट सेम इक्वेशन, 2H2 plus O2 gives H2O 2 mole, 36 gram, 32 gram and 4 gram. This was 8 gram and this is 40 gram. अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ हम एक काम करते हैं, we will assume this in place of 40 we will assume x. Okay, so again we will do same thing. So 4x is equal to 8 into 32. तो x कितना हो जाएगा बेटा, 8 into 32 डिवाइड बाय 4। तो ये कैंसिल हुआ आपका 2, तो 32 टू जा 64 ग्राम ऑक्सीजन। अवेलेबल कितना है, 40 ग्राम ओनली। चाहिए कितना, 8 ग्राम हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बट वी हैव ओनली 40 ग्राम। सो जब भी कभी हमारी जो x की वैल्यू है वो गिवन वैल्यू से हायर होगी, इफ द वैल्यू ऑफ x will be greater than given value, it means this component, this reactant is limiting reagent. तो आप यहां मेंशन कर देंगे, hence oxygen is limiting reagent। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, यही वाला जो यहां से हमने किया था लिमिटिंग रिएजेंट के बाद से, ये वाला प्रोसेस आप बिल्कुल यहां से आगे का सेम आपको प्रोसेस करना है, ये सब। ठीक है, अब इन दैट केस आप हाइड्रोजन 8 माइनस 5 हमने किया था, ये कैसे निकालेंगे। अब देखो इसे निकालने के लिए ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन वी हैव 40 ग्राम एंड वाटर। ठीक है, वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ बेटा, 45 ग्राम। तो 40 ग्राम ऑक्सीजन यूटिलाइज कंप्लीटली। सो और हाइड्रोजन कितना था, वी हैड 8 ग्राम हाइड्रोजन, तो 40 ग्राम तो ऑक्सीजन है, हमें कितना वाटर मिला, 45 ग्राम। तो 45 ग्राम में 40 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन है,
It means amount of hydrogen used. कितना हुआ? 45 minus 40 is equal to 5 gram. So amount of hydrogen unused कितना? 8 minus 5, that is equal to 3 gram. Understand? So ये वाले क्वेश्चन आपको इसी बेस पर करने हैं. ओके, आई विल गिव यू असाइनमेंट, बल्कि मैं अभी आपको बताता हूँ असाइनमेंट में आपको क्या करना है. ये एनसीईआरटी चैप्टर का ओके आपको आंसर लिख करके गूगल में सबमिट करना है. आई विल पुट इन दैट ऑल्सो. वेट फॉर अ मिनट. चलो, आई विल मार्क क्वेश्चन नंबर. ओके, I will send question in that WhatsApp group or in Google Classroom. Okay, so you need to prepare notes of this and you need to solve at least 2-3 problem based on this. Okay, if any doubt is there, so either you can ask through WhatsApp group or जब भी हमारी Friday में live class होगी at that time you can ask. Thank you बेटा.